Class 9th English medium students. So today in political science we just start our lesson 2, chapter 2, constitutional design. As you know that in our last chapter we just learn about what is democracy and why democracy is necessary. Okay, and now in this lesson we just learn about our constitution or the constitution of different countries, because in this chapter the South African constitution, the Great Britain constitutions, all countries constitutions are mentioned in this lesson actually. Okay, so here we start our this lesson. So first of all, as you know that in previous chapter you learned that the democracy or the rulers in democratic government are not free to do what they like. That means in democracy the people are elected by the people, the rulers are elected by the people of the country. Okay, but the rulers which are elected by the people of the country are not free to do anything. Okay, they just do their work according to some rules and regulations. And what types of rules and regulations for them? So the rules and regulations which are for them or which are working for them are mentioned in our constitution. Okay, so constitution simply क्या है? Constitution में सारे नियम, सारे कायदे, सारे कानून और सभी तरह के अधिकारों को मेंशन किया जाता है, बताया जाता है. ये लिखित रूप में होता है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज बी इन अ रिटन फॉर्म. एक्चुअली ये लिखित रूप में होता है. और इसमें क्या डिटरमाइन किया जाता है? द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ सिटीजन्स. ओके, जो लोगों के, शहर के, देशवासियों के जो अधिकार हैं उनको बताया जाता है. द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के क्या पावर्स हैं, क्या क्या उनको अधिकार और पावर दिए गए हैं. एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन, और इसके अलावा गवर्नमेंट किस तरह से फंक्शन करनी चाहिए, किस तरह से कार्य करना चाहिए सरकार को. मतलब सिंपली क्या बोल सकते हैं हम कि वो नियम, कायदे, कानून जो कि शहर के, देश के लोगों के लिए, सरकार के लिए और सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए बनाए जाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होते हैं. आया समझ में? सो हियर्स द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सुप्रीम लॉ जो है, जो सबसे बड़ा लॉ है कंट्री का, वो कॉन्स्टिट्यूशन है. दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में किसी चीज़ को लीगल और किस चीज़ को इलीगल बताया गया है, उसी आधार पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया की जाती है. Okay, and in this constitution mention the rights of the citizens, the power of the government and the functions according to the government work. Okay, so this is the overall simple brief review of constitution. Now come to the next point in this lesson, democratic constitution in South Africa. डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. व्हाट दैट मीन? दैट मीन डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्रीय, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में जो आपका लोकतांत्रिक संविधान है वो कैसा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका. सो इन साउथ अफ्रीका ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द वाइट पीपल एंड द ब्लैक पीपल. ओके, गोरे और कालों का हमेशा भेद रहा है साउथ अफ्रीका में. ब्लैक स्किन पीपल्स को हमेशा नेग्लिजेंसी मोड में देखा गया है उनको. सो एज साउथ अफ्रीका द कॉन्स्टिट्यूशन और द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द इन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द white people and the black people. So here the president of South Africa, Nelson Mandela, okay, he fought against white peoples for the black peoples, in the favor of black peoples. Okay, now our next point in this lesson is a new constitution.
towards a new constitution, because in past times the constitution is simply mentioned with the people of the majority. Okay, the people of the majority, that means in South Africa the white peoples are more than in compare of black people. So the constitution written according to the white peoples in the favorable manner of white peoples. So this is not the democratic constitution. Okay, because the constitution's rules, regulations, laws all are mentioned in the favor of white. So that is the reason कि the people of South Africa need a new constitution. And after the Nelson Mandela's struggle in the favor of black people, the constitution mentioned or maintained by the favor of both the peoples, black people and the white people. Okay, so protest and struggle against apartheid has increased, and the government realized that they could no longer keep the black under their rules through repression. That means कि ये गवर्नमेंट को रियलाइज़ हो गया था कि जो प्रेशर है ब्लैक पीपल्स का और ब्लैक पीपल्स के फेवर के लिए वो बढ़ता जा रहा है. लोगों के अंदर ये मानसिकता आती जा रही है कि उनको उनके अधिकार और कर्तव्यों से विमुख किया जा रहा है, और इस वजह से अब ज़्यादा समय तक ब्लैक पीपल्स यानी काले लोगों के लिए हम उनका मतलब हम शोषण नहीं कर सकते हैं. सो इस थिंकिंग के हिसाब से 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट के बाद, दैट मीन्स कि 28 साल की सज़ा काटने के बाद जो नेल्सन मंडेला थे वो वॉकड आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन. वो बाहर आए जेल से एक आज़ाद आदमी के रूप में. एंड फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 द न्यू national flag of the Republic of South Africa was unfurled, marking the newly born democracy in the world. उसके बाद 28 साल के बाद जब वो जेल से बाहर आए नेल्सन मंडेला, उन्होंने एक स्वतंत्र आदमी के रूप में वो बाहर आए, और उसके बाद 26 अप्रैल की आधी रात में 1994 को नया नेशनल फ्लैग रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का बनाया गया, जिसमें कि डेमोक्रेसी, जो नई डेमोक्रेसी थी, नया लोकतंत्र था, वो वर्ल्ड के सामने, दुनिया के सामने आया. ओके, सो ये हमारा था मेन कि जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए पास्ट से लेकर प्रेजेंट में. पास्ट में क्या रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग और किसके फेवर में काम कर रहा था, वाइट पीपल के. बट आफ्टर द being a president of Nelson Mandela, the policies and the plans are changed, and the constitution made by the both of the people's favor. Okay, now our next point in this lesson is why do we need a constitution. हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है. तो सिंपली एज आई एक्सप्लेन यू दैट कॉन्स्टिट्यूशन शोज और मेक्स द राइट ऑफ द पीपल. ओके, show or makes the rules and regulations for the government and powers of the government. So गवर्नमेंट को सिस्टमैटिक वे में चलाने के लिए, इक्वली चलाने के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए समानता के अधिकार को दिखाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है. ओके, फॉर द एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका इज़ अ गुड वे टू अंडरस्टैंड वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. साउथ अफ्रीका जो है वो एक बेटर एग्जाम्पल है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए. क्योंकि वहाँ पर विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन जो फेवरेबल था वो वाइट पीपल्स के लिए था, ब्लैक पीपल्स को इग्नोरिंग मोड में रखा जाता था. बट आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन द इक्वालिटी हैव बीन राइज एंड द पीपल ऑफ द कंट्रीज हैज बीन इक्वल इन द आइज ऑफ गवर्नमेंट. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन की नीड हमें साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल देख के हमें समझ में आता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों नीड है. सभी लोगों को समान राइट्स दिलाने के लिए, अधिकार दिलाने के लिए, है ना, उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है. ओके, नाउ उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज़ अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर accepted by the people living together in a country. in simple terms constitution क्या है. constitution किसी भी देश में लिखित जो नियम है जो कि पीपल्स के लिए, जो देश के व्यक्ति हैं, निवासी हैं, सिटीजन्स हैं, लोग हैं, उनके लिए बनाया जाता है, उनके लिए नियम, उनके राइट्स के लिए बनाया जाता है. इट इज़ द सुप्रीम लॉ. ये सबसे बड़ा नियम या कायदा या कानून है
और दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप, और ये क्या शो करता है, रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन द पीपल लिविंग इन द टेरिटरी कॉल्ड सिटीजन्स, मतलब कि सिटीजन्स के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। ओके, जो सिटीजन्स हैं, पीपल हैं कंट्री के, उनके और उस कंट्री की गवर्नमेंट के बीच में रिलेशनशिप को शो करने का काम भी है जो वो कॉन्स्टिट्यूशन का है। ओके, अ कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बहुत सारे कार्य करता है। फर्स्ट वन इज इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन की जो एक कहना चाहिए कि विश्वास करने की और लोगों के बीच में सामंजस्य बिठाने का एक कार्य करता है। उसके अलावा ये स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट होगी, किस तरह से रूल करेगी, किन अधिकारों के अंतर्गत कार्य करेगी। उसके बाद इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के पावर्स को निर्धारित करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का कार्य है गवर्नमेंट, जो भी करंट गवर्नमेंट है उसके कार्यों का निर्धारण करना, और ये बताता है कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, जो लोग हैं उनके क्या क्या अधिकार हैं, देश के नागरिकों के प्रमुख क्या अधिकार हैं। ठीक है, एंड लास्ट वन इज इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, ये लोगों को एक अच्छा समाज बनाने के लिए इंस्पायर करता है, प्रेरणा प्रदान करता है, और उसको अच्छा देश बनाने के लिए, अच्छी सोसाइटी, अच्छा समाज बनाने के लिए किस तरह के नियम, कायदे, कानून बनाए जाने चाहिए और उनका कैसे पालन करना चाहिए, ये बताता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, एंड द डेफिनेशन और द meaning of the constitution and its work. Okay, and in our next video we just discuss about our Indian constitution and making of the Indian constitution.